السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوں گے۔ اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ سب سے بہترین ذریعہ ہے، اور سجدہ کرنے کے لیے نماز بہترین طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ ناظرین، پاکستان چاند پر چلا گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ شرف بھی نواز شریف کی حکومت کو ہی حاصل ہوا، اور ابھی ایک اور سیٹلائٹ جو ہے وہ خلا میں چھوڑا جا رہا ہے۔ وہ سیٹلائٹ جو ہے وہ جناب تمام موبائل نیٹ ورک کو ان کا نیٹ ورک مضبوط کرنے کے لیے، سہولت فراہم کرنے کے لیے سیٹلائٹ چھوڑا گیا ہے۔ اس کا نام MM عالم 1 ہے، اور پاکستان تقریباً ہر محاذ پر ترقی کر رہا ہے۔ اور جناب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ایک دستک مریم کی آواز دستک پروگرام شروع کیا ہے، جس کے نتیجے میں 70,000 سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے گا۔ پنجاب گورنمنٹ نے اپنے پہلے 100 دن میں شاندار طریقے سے بہترین پلان کرتے ہوئے بہترین منصوبے جو ہیں، جو قابل عمل بھی ہیں، ان منصوبوں کو شروع کیا ہے۔ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر کا اعلان کسی نے نہیں کیا، اور جو پاسبل بھی نہیں تھے۔ جو چیزیں پاسبل تھیں صرف ان چیزوں کا ہی اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان کی معیشت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اعلان کیے جا سکتے تھے، وہی کیے گئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جناب جو گھمسان کا رنگ پڑا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اور ججز کے درمیان، اور PTI اور ججز اور ریٹائر جنرل اور ریٹائر ججز اور حاضر سروس ججز سمیت ملک ریاض کے یہ سب لوگ ایک گروپ، ایک پارٹی بن چکے ہیں، اور وہ اس حکومت کو نہ چلنے کا چیلنج دیے ہوئے ہیں، اور سید عاصم منیر کو بھی وہ لوگ چیلنج کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ان کو بھی چلنے نہیں دینا۔ تو ناظرین، اس وقت اسلام آباد اور راولپنڈی کی فضاؤں میں شاید بوٹوں کی آوازوں کی چاپ سنائی دے رہی ہے، اور لگتا یہی ہے کہ بجٹ اناؤنس نہیں ہوگا اگر سید عاصم منیر اس افریط کو، اس فتنہ دجالی کو کنٹرول نہیں کرتے، ججز کی بیجا مداخلت کو کنٹرول نہیں کرتے، تو میاں نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون وہ ہو سکتا ہے اپنے حکومت سے ریزائن کر دیں۔ ریزائن کرنے کا مطلب جو بھی ہے وہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف نے ماشاء اللہ کو سپورٹ تو نہیں کرنا عملی طور پر، لیکن حکومت میں بھی وہ لوگ نہیں رہیں گے۔ حکومت چھوڑنا پڑے گی میاں محمد نواز شریف کو، اور سید عاصم منیر کو بامر مجبوری ہو سکتا ہے کہ ماشاء اللہ وہ جوڈیشل مارشاء اللہ ہو، یا عملاً پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر کے مارشاء اللہ جو ہے اس کا اعلان کیا جائے، کیونکہ جتنی بھی اس وقت جوڈیشری اور ججز اور وکلاء اور PTI اور ملک ریاض ایک شخص کا نام نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑے مافیا کا نام ہے، ایک بہت بڑے گینگ کا نام ہے، جو کہ رشوت خوروں کو پروموٹ کرتا ہے، قبضہ گروپ کو پروموٹ کرتا ہے، بڑے بڑے ججز کو وہ خرید لیتا ہے، کیونکہ اس کا جو طریقہ واردات ہے وہ یہی ہے کہ فائلوں کے نیچے پہیے لگائے جائیں۔ وہ سب کچھ خریدنے کی کوشش کرتا ہے اور صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس کے لیے پاکستان میں جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر انہوں نے کچھ TV اینکرز کو بھی بائنگ کر کے رکھا ہے، جو سب
मीडिया को मालूम है कि कौन कौन से जो टीवी एंकर हैं वो उसके पेरोल पर हैं और उसका पैसा इस्तेमाल करते रहे और उसके प्लाट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत उन्होंने फ़ायदे उठाए हैं, तो वो उसके ही गुन गाएंगे मलक रियाज के। ख़ास तौर पर इन दिनों में जनाब हामिद मीर साहब और असद अली तूर साहब ये बहुत ज़्यादा पेश हैं मलक रियाज के पेरोल पर। अभी मलक रियाज ने इनको कितने में ख़रीदा है, कैसे ख़रीदा है, ये बातें तो राज की रहेंगी, या कभी शायद इसको भी मलक रियाज ओपन कर देगा, जैसे पिछले दिनों 2-4 दिन पहले उन्होंने उन लोगों की फहरिस्त जारी की जिन टीवी एंकर्स ने मलक रियाज से रिश्वत के पैसे काए हुए थे। तो नाज़रीन, इस वक्त इंतहाई बेयकीनी की सूरत हाल है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, और हर मजलिस में, चाहे वो जजेस की है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की है, चाहे वो पॉलिटिशियंस की है, हर जगह पर एक खामोशी छाई हुई है, एक सकूत छाया हुआ है, एक बेयकीनी छाई हुई है। लेकिन तमाम तर हालात के बावजूद जनाब शहबाज शरीफ साहब वो चाइना रवाना हो गए हैं 4 दिन के विज़िट पर, और उनका चाइना की कंपनियों के साथ उनके जो मायदे होने हैं उसकी वो पूरी तैयारी करके गए हैं, और उसका जनाब वहाँ पर विज़िट है, उसके जो नताइज हैं वो 4 दिन के बाद जब उनका दौरा इख्ताम पजीर होगा तो इलामिया जारी होगा कि कौन कौन से अमूर पर बात हुई या कौन कौन से जनाब जी एग्रीमेंट्स हुए हैं पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। वो बिंदास शहबाज शरीफ साहब बिंदास अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उन्हें कुछ परवाह नहीं है इन परेशानियों की। वो तमाम जो दर्द सर है वो मियां नवाज शरीफ साहब ने लिया हुआ है, वही उसको डील कर रहे हैं सियासी अमूर को। और देखें ऊंट किस करवट बैठता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MQM और दूसरी इत्तेहादी जमातें वो सब एक पेज पर हैं, और उनका इस्टेब्लिशमेंट से यही एक मुतालबा है कि इस फितने दजाली को लगाम डालने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की ही ज़रूरत है, वही इसमें किरदार अदा कर सकती है। वो कैसे किरदार अदा करेगी, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। लेकिन मुल्क पाकिस्तान को एक बंद गली की तरफ धकेला जा रहा है, जहाँ पर सब कुछ भ्रष्ट होने का चांस है और मुल्क को अंधेरों में दोबारा धकेले जाने का चांस है। मियां नवाज शरीफ ने तो खुले ऐलान बात कर दी है, मैसेज दे दिया है इस्टेब्लिशमेंट को कि अगर आप इन काले पूंडों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो जनाब हमारी तरफ से जवाब है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है इन पूंडों को संभालना। इसका क्या तरीक़ाकार निकालना है आपने वो तरीक़ाकार निकालें, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब कहते कि हमारे बस में ये बात नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के बस में तो होगा, लेकिन वो कैसे तरीक़ाकार होगा, क्या लाएअमल होगा, वो अभी तक मंजर आम पर नहीं है। सब कुछ पर्दों के पीछे ही चल रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला पाकिस्तान की खैर करे, पाकिस्तान के दुश्मनों को नीस्त व नाबूद कर दे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बुरा सोचने वालों को अल्लाह सुब्हानहू तआला नीस्त व नाबूद कर दे। जो एलिमेंट्स भी हैं जो पाकिस्तान क्या बुरा सोच रहे हैं, अल्लाह उन्हें गरक कर दे। तो बात दुश्मनों की हो रही थी, तो जनाब जी वाजपेयी साहब पाकिस्तान का दौरा करके गए थे, जो इंडिया के वज़ीर आज़म थे। तो अभी इंडिया के जो वज़ीर आज़म हैं इस वक्त नरेंद्र मोदी साहब, उनका इलेक्शन हुआ है। इलेक्शन में वो भरपूर अक्सरियत के साथ नहीं जीत सके, उनका और अपोजिशन के साथ शायद 50 के करीब सीटों का डिफरेंस है। अपोजिशन 250 के करीब सीटें लेकर बैठी है और नरेंद्र मोदी साहब 293 सीटें लेकर बैठे हैं। मोदी के साथ भी इत्तेहादी जमातें हैं और कांग्रेस के साथ भी इत्तेहादी जमातें हैं, लेकिन
पिछले 10 साल के बाद पहली बार कांग्रेस ने एक अच्छा रिज़ल्ट देने में कामयाब हुई है। और जो रियासती इलेक्शन में है उसमें जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, दिल्ली है, पंजाब है, उसमें सुना है कि इंशाअल्लाह ताला कांग्रेस के और उनके इत्तेहादियों के हालात अच्छे हैं और यहाँ पर उनकी जो हुकूमत है वो कायम हो जाएगी। और जो आने वाले दिनों में अगर हुकूमत पाकिस्तान कायम रहती है तो भारत के साथ इत्तेहाद हो सकता है। इत्तेहाद किस चीज़ का? इक़्तिसादी के तौर पर उनके साथ सुलह हो सकती है, इत्तेहाद हो सकता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पाकिस्तान की खैर करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पाकिस्तान को हमेशा खुश व खुर्रम रखे। पाकिस्तान के मसाइल अल्लाह सुब्हानहू व तआला जल्द अज जल्द हल करे और इसमें एक अमन का वक़्त आए, एक इत्तेफाक का वक़्त आए और पाकिस्तान में जो है ये सियासी अनस्टेबिलिटी जो है वो अल्लाह करे ख़त्म हो जाए और मुल्क में एक स्टेबिलिटी का दौर आ जाए। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उम्मीद है कि ऐसा ज़रूर होगा। ये मुल्क नज़रिया इस्लाम पर बना है और कलमा की बुनियाद पर बना है। इंशाअल्लाह ताला कलमे वाले ने ही, जिसका हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम का कलमा है, वो ही इस मुल्क की हिफाजत करेगा और मुल्क के दुश्मनों को निस्त व नाबूद करना इंशाअल्लाह ये मामला अल्लाह के हाथ में इस वक्त। जैसा कि इब्राहा ने हमला किया था मक्का पर, काबा पर, तो मक्के के उस वक्त जो सरदार थे जनाब अब्दुल मुत्तलिब साहब, जो दादा थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन्होंने खाना काबा को ऐसे ही छोड़कर अपने घरों में लोगों को कहा आप लोग अपने घर में गए, जिसका काबा है वही इसकी हिफाजत करेगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अबाबीलों के ज़रिए इस वो इब्राहा के लश्कर को गर्क किया और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भी कलमे की बुनियाद पर बना है और जिसके नाम का कलमा है इंशाअल्लाह वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। हमारी दुआएं हैं और पूरे पाकिस्तान की दुआएं हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद।